The Central Bureau of Investigation has arrested Oasis School principal cum district coordinator of NEET exam, Ehinsul Haq, Vice Principal Imtiaz Alam, and another individual on allegations of tampering of question papers in Jharkhand's Hazirabad. The latest coming in at this point of time after the CBI had questioned the principal and other staff members with regards to the alleged irregularities in the conduct of the NEET UG 2024 on Wednesday. Besides this, the special CBI court in Patna had earlier sent two accused in the NEET question paper leak case, Chintu Kumar and Mukesh Kumar, to CBI remand for 3 days. So, of course, developments there coming in at this point of time as far as this is concerned. In fact, in latest updates in the NEET case, the CBI has recorded the statements of around 3 candidates, along with statements of J. Jalaram School Administrator Dikshit Patel. Shakti on the telecast with me. Shakti, if you could take our viewers through the latest details and developments that are coming in as far as the NEET examination is concerned. CBI has recorded statements of 3 candidates, is what we're learning. ये देखिए, हजारीबाग से जो है सीबीआई की टीम ने जो है ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एक पत्रकार को जो है गिरफ्तार करके कल देर रात जो है सीबीआई की टीम पटना पहुंची है और पटना में जो है सीबीआई कार्यालय में इन तीनों के साथ साथ जो पहले से 4 जो अभियुक्त हैं उन लोग को गिरफ्तारी हुई रिमांड पर जिसको सीबीआई ने रखा, उन लोगों को सब सातों को एक साथ बैठा के जो है सीबीआई की टीम अब जांच करेगी और जो परतें हैं एक दूसरे से जो कड़ियां उनको जोड़ने की कोशिश करेगी और सामने सामने की पूछताछ में कहीं ना कहीं जो बातें इन अभियुक्तों ने इंडिविजुअली बताया है उन सबको एक साथ बैठा के उसके बाद जो आगे का पूछताछ जो है किया जाएगा। और आपको बताएं कि आज जो है सीबीआई की टीम जो है इन 7 अभियुक्तों को लेकर जो है पटना से दिल्ली जा सकती है और किसी भी समय जो है सीबीआई की टीम इन लोगों को लेकर जा सकते हैं। फिलहाल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो प्रिंसिपल है ओएसिस स्कूल हजारीबाग का, उसके वो संदिग्ध के घेरे में है और जिस तरह से ब्लू डॉट कंपनी जो कुरियर कंपनी है जिसके द्वारा जो क्वेश्चन पेपर आए थे वो उसमें ये जानकारियां मिल रही है कि वो जो क्वेश्चन बुकलेट थे वो पहले कुरियर के द्वारा वो बैंक नहीं जाके सीधे जो है ओएसिस स्कूल चले गए थे। वहीं पे कहीं ना कहीं जो बुकलेट थे उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी और क्वेश्चन पेपर को जो है वहां से जो है निकाला गया था और उसके बाद प्रिंट आउट करके जो है अभ्यर्थियों को सेटरों ने जो है सॉल्वर के पास भेजा था। इन तमाम चीजों को लेकर जो है सीबीआई अब जो 7 आरोपी हैं उनको आमने सामने बैठा के जो है सबसे बातचीत करेंगे और इनपुट जो है इस मामले में जो है सीबीआई के अधिकारी जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं और इसमें होता है कि कई और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। सबसे अहम यह है कि संजीव मुखिया जो कि मास्टरमाइंड है पूरे मामले का, वो उसके बारे में सूचना मिल रही है कि वो बिहार से नेपाल पार हो गया है और सीबीआई की टीम जो है लगातार संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कर रही है। जी Right, absolutely. Stay on with us. In fact, we have some more breaking news coming in at this point of time. In another development coming in, Godhra court heard the remand petition filed by CBI against the 4 accused in the Godhra case. CBI sought 4-day remand and asked the court to decide on the remand application. And that's of course there. At the same time, another CBI team questioned the state's exam and recorded statements. That's of course the latest that's coming in at this point of time from as far as Godhra court is concerned. They've heard the remand petitions filed by CBI against 4 accused in the Godhra case. In fact, CBI sought for a 4-day remand and asked the court to decide on the remand application. At the same time, another CBI team questioned the state's examinees and recorded statements. That's the latest that's coming in at this point of time as far as the probe is concerned. My colleague Jayesh Soni with us on the broadcast to give us more details on this. Jayesh, if you could take our viewers through the latest developments that are coming in as far as, of course, the Godhra case is concerned.
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 5 आरोपियों को गोधरा पुलिस ने पकड़ा था, उनमें से 4 आरोपियों के लिए सीबीआई ने 4 दिन के रिमांड की अर्जी गोधरा की स्पेशल कोर्ट के अंदर दायर की है। कल उनको जेल से कोर्ट में चारों आरोपियों को पेश किया गया था। पूरे दिन सुनवाई चली थी, जिसमें सीबीआई के वकील और जो आरोपी के वकील है, उन दोनों ने कोर्ट के सामने अपनी अपनी दलीलें रखी थी और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आज फिर से सुनवाई करने के लिए केस को मुकर्रर किया है। आज फिर से इस केस के मामले में सुनवाई होगी और आज शाम तक हो सकता है कि कोर्ट अपना फैसला सुना दे। सीबीआई की तरफ से जो वकील पेश हुए थे, उन्होंने जो ये पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने के लिए जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, उस इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस कोर्ट के सामने पेश किया था और ये बताया था कि आरोपियों से पूछताछ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आरोपियों के साथ पूछताछ करने के बाद आगे की जांच में बहुत ज्यादा सहयोग मिल सकता है। तो यही सारी बातों को लेकर के कोर्ट के सामने तथ्य रखे गए थे कल के दिन, और आज भी इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए कोर्ट में सुनवाई होगी और शाम तक इस मामले को कोर्ट में फैसला आने की गुंजाइश लग रही है। All right, absolutely. In fact, my colleague Javed is also with us. Stay along with us, and we're going to toss to Javed, who's live with us from Delhi. Javed, if you could take our viewers to the latest developments that are coming in as far as the probe is concerned, what more details can you share with us? और देखिए, सीबीआई जिस तरीके से जयेश हमारे सहयोगी बता रहे थे कि गुजरात मामले में सीबीआई जो है इन आरोपियों को आज कोर्ट में जो है इनकी सुनवाई होनी है, क्योंकि सीबीआई इनकी रिमांड मांग रही है कि रिमांड से इस पूरे नेक्सस का जो है वो सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सके। इस पूरे नीट यूजी स्कैम मामले में 2 तरह का स्कैम है। एक प्रॉक्सी कैंडिडेट स्कैम है, वहीं दूसरा कुछ स्टेट में पेपर लीक मामले को लेकर है। जहां एक तरफ सीबीआई बिहार और झारखंड के नीट यूजी पेपर स्कैम मामले में अब तक उन्होंने 5 गिरफ्तारी कर चुकी है, और इन 5 गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई ये मान रही कि इनसे और भी बड़े जो नेक्सस है, इनसे आगे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके बारे में पता चल सकता है। क्योंकि अब सीबीआई के साथ साथ जो इस पूरे स्कैम को लेकर बिहार और झारखंड में जो इकोनॉमिक्स ऑफेंस यूनिट इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उनको भी अब जो है रॉकी नाम के एक शख्स की तलाश है, जो इस वक्त नेपाल में छुपा हुआ हो सकता है। जो कि अभी तक जानकारी मिल रहा है कि रॉकी नेपाल में, और रॉकी जो है बिहार और झारखंड के बीच का एक मीडिएटर था, जिसने रांची में अपने रेस्टोरेंट में इस पूरे नेक्सस को लेकर मीटिंग कर रहा था, और जो कैंडिडेट थे, सिलेक्टिव कैंडिडेट थे या जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, उनकी मीटिंग कर रहा था, जिससे कि किसी को पता ना चल सके। ये जांच में सामने आया है। चिंटू और मुकेश की गिरफ्तारी के बाद कई कुछ डायरीज जी No, continue. जी, कुछ डायरीज मिली है, जिस डायरी में भी कुछ नाम लिखे हुए हैं, कुछ लेन देन है, जिसमें तकरीबन 20, 30, 35 लाख रुपए के जिक्र है। और इसमें शुरुआत में ही इसमें ईओयू को इसमें कुछ चीजें जो हैंडराइटिंग क्लियर नहीं आ रही थी, जिससे कि और चीजें फैक्ट हो सकती है। कुछ फोन्स हैं जिसको सीएफएसएल की जांच के लिए भेजा गया है, जिस तरीके से टेलीग्राफ जो डाटा है उसको डिलीट किया गया, क्योंकि उसी में कई सारी चीजें हिस्ट्री है इस पूरे एग्जाम को लेकर, इस पूरे नेक्सस को लेकर, ग्रुप को लेकर, इसके अलावा किस तरीके से कहां पे कैसे किसको पहुंचाना और कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं। क्योंकि बिहार में मुजफ्फरपुर की अगर हम बात करें, समस्तीपुर की बात करें, नालंदा की बात करें, तो इस तरह का एक पूरा नेक्सस फैला हुआ। ठीक उसी तरीके से झारखंड में हजारीबाग के अलावा रांची के अलावा देवघर, और इसके अलावा झारखंड के कुछ और जिले हैं जो इस पूरे नेक्सस में शामिल हैं। सीबीआई ने 3 लोगों को कल गिरफ्तार किया, एहसानुल हक, वाइस प्रेसिडेंट इम्तियाज और एक लोकल जर्नलिस्ट को। क्योंकि शुरुआत में जो डिजिटल लॉक है, जो पेपर का डिजिटल लॉक है, उस लॉक को लेकर ताकि वो अपने आप एक बीप की आवाज के बाद ये जो लॉक है वो ओपन हो जाता है, लेकिन ओपन नहीं हुआ, जो कि ओसिस के प्रिंसिपल इम्तियाजुल का कहना था, सीबीआई को भी और ईओयू को भी। लेकिन शुरुआत में ही सीबीआई को कुछ चीजें कॉन्फ्लिक्ट लग रही थी एहसानुल हक की बयान को लेकर, तो उसके बाद उनको डिटेन किया गया। लेकिन डिटेन से पहले एक लंबी पूछताछ की गई। ओसिस बैंक में, स्कूल में भी सीबीआई की टीम पहुंची। उसके अलावा फिर एसबीआई बैंक, जो कि हजारीबाग में, जहां तक ये पूरा क्वेश्चंस का जो 2 ट्रंक था, क्योंकि देखिए 2 ट्रंक में ये पेपर आए थे और ट्रंक में भी टैंपरिंग की गई थी, यानी कि उसके हैंडल को चेंज किया गया था, और जिस कलर का ट्रंक था उस कलर का हैंडल नहीं था। तो शुरुआत में Yeah, absolutely. Javed, stay on with us. In fact, my colleague Prathamesh is also with us, and he's joining us live from Mumbai. Prathamesh, of course, there were arrests that were made in Maharashtra as well. There were teachers who were arrested. If you could take our viewers to the latest that's coming in from Maharashtra as far as the probe and the questioning is concerned.
Yes, correct. When the Nanded ATS started investigating on this matter, they have arrested two teachers of Jilla Parishad from Latur, and their name has been as a Zaril Pathan, and second teacher name as Sandeep. So these two teachers are being arrested in this full NEET scam, and the investigation is going on. When the search operation was being done in their home, and the search operation was been scheduled in their home, some ID cards were found. NEET ID cards were found. Yeah. NEET ID cards were found, and after that the investigation is still going on. The court has directed them to send in the police custody till 12 July, till 12th July. They have been sent to the police custody, and further details are waited. Still the ATS is doing the investigation on it. Yes. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.